मेरे तो ऐप ही है। You have already studied about triangles and in particular right triangles in your array classes. Let us take some examples from our surroundings where right triangles can be imagined to be formed. For instance, suppose the students of a school are visiting Qutub Minar. Now, if a student is looking at the top of the Minar, a right triangle can be imagined to be made as shown in figure 8.1. Can the students find out the height of the minar without actually measuring it? ठीक है, मान लो ये एक स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है ना, ये मान लो इसकी हाइट नापना चाहते हैं, कितनी ऊंची होगी देखेंगे। इतनी ऊंची नहीं। ठीक है, हाँ इतनी ऊंची है मान लो, तो नापेगा तो कैसे नापेगा? राइट ट्रायंगल चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको चढ़ना पड़ेगा, नापेगा तो इसको चढ़ना पड़ेगा और बहुत टाइम लगेगा और पता नहीं नापे ना नापे ढंग से। तो ये एंगल नाप लेगा, नाप लेगा ये एंगल की से फिर इसी पूरी हाइट निकाल सकता है। ठीक है, वहीं का डाटा निकल सकता खड़ा खड़ा। हाँ ठीक है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे इसमें। अगला एग्जांपल देखो। Suppose a girl is sitting on the balcony of her house located on the bank of a river. She is looking down at a flower pot placed on a stair of a temple situated nearby on the other bank of the river. A triangle is imagined to be made in this situation as shown in figure 8.2. If you know the height at which the person is sitting, can you find the width of the river? ठीक है, मान लो अभी ये अपने घर में बैठी हुई है, ठीक है, बालकोनी में। इसको पता है घर तो कितना ऊंचा है, इसको पता है ना, इसको घर तो 20-25 फुट ऊंचा हो तो होगा मान लो। और इसको ये पता है कि भाई यहाँ पे ये नीचे है, क्या ये इसकी सिद्ध में है, मतलब ये मंदिर। हाँ, मंदिर में जो निचली पैड़ी है ना वो। ठीक है, तो ये नदी की जो चौड़ाई वो नाप सकती है। ठीक है, निकाल सकती है इसमें। हमारे पास क्या चाहिए इसको बस एक तो ये चाहिए एंगल, एक तो ये हाइट चाहिए इसको। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए इसको? एंगल चाहिए। ठीक है, तो आराम से ये निकल जाएगा आराम। ठीक है, ये निकालो चाहिए, निकालो है। तो इसलिए बड़े काम की चीज़ है। क्या है भैया? काम की चीज़ है ना, ये देखो हम कर सकते हैं। ठीक है, और देखो चलो एक बार एक और पढ़ो। तू पढ़ भी रही आपकी बार रही थर्ड वाला तो पढ़ ली मैंने। तू पढ़ भी। सपोज ए hot air balloon is flying in the air. A girl happens to spot the balloon in the sky. The runs to her mother to tell her about it. Her mother rushes out of the house to look at the balloon. Now, when the girl had spotted the balloon, initially it was at point A. When both the mother and daughter came out to see it, it had already traveled to another point B. Can you find the altitude of B from the ground? ठीक है, जब पहले मान लो देखा तो यहाँ था गुब्बारा। ठीक है, धीरे धीरे वहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो मान लो 2 पॉइंट नोट कर लिए इसमें। ठीक है भैया, एक बार यहाँ से सीखता है, एक बार यहाँ सीखता है। तो इसकी हाइट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी एंगल उसकी वजह से निकाल। हाँ, 2 एंगल होगा ना इसमें, एक तो ये होगा, एक ये होगा। एक ये तो 90 डिग्री का, ये दोनों 90 डिग्री। ये 90 का होता है। ठीक है, क्या होता है कि एक हमेशा 90 का होगा। ठीक है, इसमें राइट एंगल नहीं क्या है? राइट एंगल। तो हम 3 तरह सवाल, 3 सवाल हम करेंगे इसमें। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। In all the situations given above, the distance or heights can be found by using some mathematical techniques which come under a branch of mathematics called trigonometry. The word trigonometry is derived from the Greek words tri meaning 3, gon meaning sides, and metron meaning measure. In fact, trigonometry is the study of relationships between the sides and angles of a triangle. The earliest known work on trigonometry was recorded in Egypt and Babylon. Early astronomers used it to find out the distances of the stars and planets from the earth. Even today, most of the logically advanced methods used in engineering and physical
Science are based on trigonometrical concepts. ठीक है, देखो भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले कहाँ आई थी भाई? ये इजिप्ट में, मिस्र में और बेबीलोन में। बेबीलोन, ठीक है, ये कोई और country है? हाँ ये देश है भाई। ठीक है, क्या है ये दोनों देश हैं छोटे छोटे। और इसका काम क्या था पहले कि ये स्टार्स का डिस्टेंस निकालते थे। ठीक है, स्टार से प्लैनेट और प्लैनेट्स का, ग्रहों का। ठीक है, फ्रॉम अर्थ। अर्थ से। हालांकि वो अंदाज़ा नहीं हो सकता। ठीक है, स्टार बदलता रहता है ना, अर्थ बदलती रहती है। ठीक, लेकिन चलो कुछ भी आइडिया तो लगाते थे ये लोग। और आजकल भी बहुत यूज़ होता है। ठीक है, किस में यूज़ होता है? इंजीनियरिंग में और फिजिकल साइंस में। ठीक है, मान लो हमें पुल बनाना है तो कितनी हाइट का होना चाहिए? ठीक है, मकान कितनी हाइट का होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री होता है। इनमें भी यूज होती है। ठीक है, In this chapter we will study some ratios of the ratios of the sides of a right triangle with respect to its acute angles called trigonometric ratios of the angle. We will restrict our discussion to acute angles only. However, these ratio can be extended to other angles also. We will also define the trigonometric ratios for angles of measure 0 degree and 90 degree. We will calculate trigonometric ratios for some specific angles and establish some identities involving these ratios called trigonometric identities. ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे इसमें? एक्यूट एंगल लेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है? Acute 90 बिलो 90। ठीक, क्या होता है? below 90. ठीक है, तो इसमें चैप्टर हम यही पढ़ेंगे भाई। ठीक है, कि भी फिर हम क्या करेंगे? रेशियोज निकालेंगे। उसके करेंगे उसके रेशियोज। देखो जैसे हो भी, इधर नाम दे, देख यहाँ पास ट्रायंगल मान लो। ठीक है, ये ए बी सी। ठीक है, हम मोटे तौर पर यही मानते हैं। तो रेशियो निकालना है इसका। रेशियो पूछ रहा नहीं है, तो इसका रेशियो क्या है? बी सी अपॉन ए बी। ठीक है ना, रेशियो ऐसे ऊपर नहीं डिवाइड करना है इसको। ठीक है, और क्या रेशियो इसको? ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, तीन तरह का हो सकता है ना इसके। और क्या हो सकता है? एक बी ए बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, ये सारे अलग अलग है ना सर? देखो तीन तरह अलग अलग है सर, देखो है ना, अलग अलग। अरे सेम है, अलग अलग है तो बता नहीं रहे तुम? अलग है। ठीक है, इसके अलावा अभी हम कुछ स्पेसिफिक एंगल देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे हम? स्पेसिफिक एंगल, तो जो कि 0 और 90 डिग्री के बीच में होंगे। ठीक है, तो बताया था। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, फिर स्पेसिफिक एंगल है तो 30 डिग्री क्या है? 30 है। ठीक है, फिर क्या है? 45 डिग्री है भाई, फिर 60 डिग्री। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल कैसे है? स्पेशल एंगल है ना ये, क्योंकि सारे ये नहीं 31 32 33 कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, 45 होगा। उसके अलावा 0 90 तो है, क्या है? एक 0 और लास्ट क्या है? 90। ठीक है, तो ये 5 तरह के एंगल हैं, हम इनको ध्यान रखेंगे इनको। चलो इसका लास्ट पेज है, देखो भी आगे trigonometric ratios. In section 8.1 you have seen some right triangles imagined to be formed in different situations. Let us take a right triangle ABC as shown in figure 8.4. देखो भाई, राइट एंगल है ना ये ध्यान रखो। तुम्हें वो नोट करना, बार पूछूंगा उनसे ये क्या है? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, इस एंगल के साथ ही साइड है ना, साथ साइड। ठीक है, ये बड़ी साइड है जो कि राइट एंगल के अपोजिट है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है ये? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एक ये साइड है, साइड अपोजिट टू एंगल ए। अपोजिट एंगल ए के सामने है ना, ये अपोजिट है। ठीक है, ये तुम तीनों उदाहरण रखना। ठीक है, इनको क्लियरली। हर एंगल मैं बोलता हूँ, कोई बात नहीं। ये एंगल सी ए बी और इन ब्रीफ एंगल ए। ठीक है, इज एन एक्यूट एंगल। नोट द पोजीशन ऑफ द साइड बी सी विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। साइड बी सी क्या है? इसमें अपोजिट क्या है? अपोजिट साइड है।
एंगल के अपोजिट है ना भाई, एंगल क्या है अपोजिट, एंगल आ गया इसमें, रिकॉल इट। ए सी इज़ द हाइपोटेन्यूज बता दिया मैंने अभी, और क्योंकि क्या है राइट एंगल के अपोजिट है, ठीक है। और एक एंगल जो लास्ट बची साइड वो क्या है, एडजेसेंट साइड, क्या बच गया, एडजेसेंट साइड टू एंगल है, ठीक है। हाँ बस पेज पूरा होगा ना, ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं, ठीक है।